So yeah, good evening everyone. So this is our startup night out, regular Friday startup night out, where we invite a budding entrepreneur and know about their story. My name is Vishal. I'm the founder of Learning While Traveling, and we do this session every Friday to inspire the students and startup enthusiasts to know about the initial journeys of budding entrepreneurs. So today we have Fazal Naab. So Fazal, welcome to our startup night out. So please, small introduction from you, and then we'll have series of questions for you about your journey. Please. Thank you, Vishal. Hello, everyone. Yeah. Hello. Hi. First of all, my name is Fazal Nayab, and I am basically a serial entrepreneur. And I usually entrepreneur doesn't means only doing the business, but in terms of doing research in various fields, whether in the healthcare segment, whether it's in the climate segment, or any aspect, I have done my research on this. Sir, it's over you. Yeah, sure. So Fazal, please tell us कि जब आपने शुरुआत की शुरू शुरू में तो Okay. आपको ये स्टार्टअप करने का आइडिया या मोटिवेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, और फिर आपने मतलब जब आपके माइंड में ये आइडिया आया कितने दिन लगे आपको उसको लॉन्च करने में, पहला पहला स्टार्टअप या जो भी मतलब स्टार्ट किया था आपने, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो अभी हम You are लोग पूरे सेशन में वही बात करेंगे कि आपका स्टार्टिंग कैसे हुआ और अभी आप मतलब अभी तक क्या जर्नी आपने कवर की, प्लीज। I think you are talking about my first startup or the current startup. No, first like your life change thing. Okay. When I was studying in my engineering college, उस समय मुझे पता नहीं, मैं क्लासेस नहीं करता था, बट काफ़ी सारे इनोवेशंस पे काम करता था। जैसे आप कॉलेज पे उस समय काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था वो आपका मैकलेव ट्रेन के बारे में, मैग्नेटिक लेविएशंस के बारे में। तो आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैग्नेटिक लेविएशंस ट्रेन ऑन दैट। तो मेरे कॉलेज के मार्क्स प्रॉपरली नहीं आते थे। टीचर्स आर स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी फॉर द वेरियस एस्पेक्ट्स कि यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली। उसके बाद ये then suddenly after fourth year I just graduated from there. Then I thought of, instead of doing some office jobs from 9 to 5 or 9 to 10, it's not meant for me. I thought of starting doing some business. At that time, I think in 2012, there is not much awareness about the entrepreneurship. So I just thought of doing some business in terms of generating revenues or something. But at that point of time, I thought ki I was wrong at that point, because generating a revenue is not meant for me. You are creating a business, but that is not good for the long-term revenue partner for this. Hmm? So, so you didn't want to like work for someone. So that was the main motivation of jumping into entrepreneurship. Not exactly, but I don't want to work for 9 to 5. I just have wanted to do my something own of myself. Own and flexibility, Exactly. and probably no boss or no boss, maybe Certainly. few teammates. Certainly. Okay. So what was your very first startup about? मतलब उस वक्त ये तो चलो mindset हो गया कि I don't want to Mhm. do all this, and you are doing I think various research. How did you Mhm. pick your idea? So this is the idea, and like you said, you have been serial entrepreneur, which Mhm. means you actually worked on many ideas. ठीक है, I'll assume at least 2 to 3. ठीक है, तो एक आइडिया से दूसरे आइडिया, तीसरे आइडिया, चौथे आइडिया, अभी जो आप कर रहे हैं ये आपको उस वक्त माइंड में आया भी नहीं था क्या, या नहीं, मतलब हाउ वाज दैट आइडिया जंपिंग थिंग, और द वेरी फर्स्ट आइडिया केम टू योर माइंड, आई मीन एनीथिंग इंस्पायर्ड यू, यू सॉ एनी प्रॉब्लम लाइक योरसेल्फ, अब खुद पे भी थी किसी और पे भी थी, प्लीज इनलाइटन अस। अभी जो मेरा करंट स्टार्टअप है, आई थिंक ये स्टार्टअप का आइडिया मुझे अपने सेकंड स्टार्टअप्स के थॉट्स में आया था ड्यूरिंग द इंटरवल। आई थिंक उस समय मुझे याद है कि दिल्ली वाज चोकिंग,
और मैं काफ़ी दिल्ली, तो मुझे थॉट आया कि दिल्ली क्यों चोक कर रहा, तो आई थॉट ऑफ कि पता करते हैं आखिर दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है। देन आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द थिंग्स एंड नंबर्स ऑफ रिसर्च, तो आई फाउंड कि मेजर प्रॉब्लम है दिल्ली में इज द एयर पोल्यूशन। तो मैंने स्टार्ट रिसर्च किया कि कैसे इसको कम कर सकते हैं। काफ़ी सारे पोल्यूशंस के बारे में, काफ़ी सारे एयर प्योरीफायर्स मार्केट में अवेलेबल है, बट वो सारे मार्केट एयर प्योरीफायर जो है वो इनसाइड दी होम काम करते हैं, नॉट फॉर दी ओपन एटमॉस्फेयर। एंड आज तक अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं बनी है जो ओपन एटमॉस्फेयर पे इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, एक्सेप्ट, आई एम सॉरी, प्लीज कंटिन्यू, वो किसी का अनम्यूट रह गया था। okay, I think there is only one company which they have recently launched, that is from China. I think air purification tower that is recently from the 1 year back itself. ड्यूरिंग दिस पीरियड तो मैंने सोचा कि एयर पोल्यूशन के डिवाइस को बनाते हैं, बट आफ्टर रिसर्चिंग मोर एंड मोर, तो एयर पोल्यूशन जो है बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है। वर्ल्ड के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज, एंड ये क्लाइमेट चेंज की वजह से एटमॉस्फेयर के कंडीशंस खराब हो रहे हैं। जो हमारा फ्यूचर जनरेशन से, जो आने वाले जनरेशन से, वो खराब हो जाएंगे। इस उसको बचाने के लिए मैंने ये डिवाइस को फिर बनाना चालू किया। ओके, सो आपका अभी करंट स्टार्टअप एयर प्योरीफायर या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, थोड़ा सा एग्जैक्टली हमें सर। बताएं। हाँ जी सर। तो उससे मतलब अभी ये ऑन ग्राउंड चल रहा है या अभी स्टेल्थ मोड पे है, या लाइक आपने अभी किस स्टेज में है आप? आई थिंक हमारा पीओसी मॉडल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मैंने उसको टेस्ट कर लिया है, वैलिडेट कर लिया है। वन ऑफ द यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में, वो यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी उसको वैलिडेट कर लिया है। आई थिंक आज ही की बात है, आई थिंक आज 5 बजे के आसपास मेरी वन ऑफ द मीटिंग थी आईआईटी कानपुर के साथ भी। तो आई थिंक वहाँ पर हम लोग कोलैबोरेट होके अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं उनके साथ। हाँ, ओके। तो आपका प्रोडक्ट लाइक पोर्टेबल डिवाइस या समथिंग है? नहीं, अभी इनिशियल मोड पे वो पोर्टेबल डिवाइस तो नहीं है, दैट इज अ स्टैंड अलोन डिवाइस। ओके, स्टैंड अलोन मतलब घर पे लग नो, जाएगा नॉट ऐसा कुछ? एग्जैक्टली, नहीं नहीं नहीं, मेरा डिवाइस जो है वो घर पे काम नहीं करता कभी भी। मेरा ओके, डिवाइस ओपन एटमॉस्फेयर पे काम करता है। मतलब गार्डन या रोड वोड पे लगाने के लिए, ऐसा एग्जैक्टली कुछ? सर, सर्टेनली सर। ओके, तो वो उस एरिया का एयर को मतलब प्यूरिफिकेशन लेवल को एक लेवल ऊपर खींचेगा? इज दैट समथिंग यू वांट टू? नहीं 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 sir, ये प्यूरिफिकेशन होते हैं कैसे कि जब आपका एयर फ्लो डायरेक्शन पास होता है किसी डक्ट से, जब वो एयर, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जिस पार्टिकल्स को नेमली असाइन किया जाता है पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 5, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पर्टिकुलेट मैटर 2.5 से जो स्मॉल रहता है, जिसको स्मॉग बोलते हैं। जो ठंडे के दिनों में आप देखते होंगे कि कुहासा हो जाता है, दैट इज नोन एज अ स्मॉग। तो ये सारे पर्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं, इनको मैं कलेक्ट करता हूँ। साथ साथ जो आपके नेकेड आई से जो ग्लोबल वार्मिंग इशू कर रहा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वन ऑफ द रीजन है क्लाइमेट चेंज का, उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी मैं ट्रैप कर रहा हूँ। एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑल अक्रॉस द ग्लोब कहीं नहीं है। इसकी पेटेंट राइट्स मेरे पास है। ओके, तो इट्स काइंड ऑफ अ ट्रैकर या जस्ट, आई मीन, so it will just generate report, or it will नो नो also नो नो, इट do विल something वर्क, after generating? is not generating report, it actually purifies the air. ओके, ओके, सो बोथ हो गया ना, मतलब फर्स्ट इट विल आइडेंटिफाई first किस लेवल first का it will, प्यूरिफिकेशन करना है yes यहाँ पे। exactly, first it will purify the pollution, in the second phase it will purify the carbon dioxide. Okay, sure. So I think if I understand correctly, you can feel free to correct me. It's Sure. basically capturing all those pollution particles, or let's say polluted gases, or whatever contributes to pollution. You are Mhm. pretty much, like a hero of a Bollywood, yeah, Hollywood, What exactly? capturing all those pollutants from the air. Is that correct understanding? Well, 50% it's right. Pollutant is one of the, that's what I told you, right? Pollutant is not a major problem. Major problem in India is only a pollution.
but for the world the major problem is climate change, and climate change Mm-hmm. happens only due to the carbon dioxide. क्योंकि हर बच्चा जानता है भैया पेड़ क्यों लगाया जाता है, पेड़ इसलिए लगाया जाता है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले और हमें ऑक्सीजन दे। बट आजकल तो आप देख रहे हैं हर जगह पेड़ कट रही है, पेड़ कट जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, उसकी वजह से हमारी टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर की वो राइज हो रही है। तो उसको रोकने के लिए ये टेक्नोलॉजी को लाया गया। हम्म। सही बात है। आई थिंक वेरी गुड इंफॉर्मेशन, थोड़ा इनलाइटनिंग भी है मेरे लिए भी कि अगर आप इट्स मोर बोलो ऑन तो मैं द एनलाइटमेंट और कार्बन कर डाइऑक्साइड। देता हूँ मैं हाँ इसको। प्लीज प्लीज, ऑब्वियसली इसलिए बुलाया आपको। ओके, प्लीज। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली होता क्या है। जो हमारे घरों में कार सॉरी हम लोग जो कार चलाते हैं या जो भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं, या घर में जो आप खाना पकाते हैं या जो आप सांस छोड़ते हैं एक्सेल करते हैं, दैट इज ऑल कार्बन डाइऑक्साइड। जो इंडस्ट्रीज होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आप जला रहे हो घर पे, वो भी काइंड ऑफ वो अमिट कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड। जब दुनिया में ऑलमोस्ट 1900 पीरियड में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ना के बराबर था। तो जब से इंडस्ट्रीज चालू हुई है आफ्टर 1900 व्हेन द इंडस्ट्री स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, तो उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा बढ़ गया है। वी कैन से कि अगर इन 1900 इज ऑलमोस्ट 200, तो अभी वो डबल है 400 के आसपास, इज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बिगर दैन। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो आर्टिक आइस या अंटार्कटिका में जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलने लगेगी। क्यों पिघलेगी? क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो आप पूछेंगे अर्थ का टेम्परेचर राइज होने से क्या फर्क पड़ता है? अर्थ का टेम्परेचर मतलब 1-2 डिग्री बढ़ेगा, बट 1-2 डिग्री से क्या होता है, सपोज अभी अर्थ का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है, अभी हम 1900 के बाद से ये टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1 डिग्री बढ़ चुका है। in coming 4 to 5 years it will reach up to 1.5 degree Celsius, and with this century it will reach up to 2%, 2 degree Celsius. बट ये 1 or 2% होता क्या है, ये एक्चुअली में 1.5% जब बढ़ता है तो ऑलमोस्ट 6% इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो लिविंग बीइंग इंसेक्ट्स है, वो 6% इस दुनिया से खत्म हो जाते हैं, जो दोबारा इस दुनिया में कभी नहीं आएंगे। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 8% गायब हो जाएंगे। वर्टिब्रेट्स 4% इस दुनिया से गायब। वही अगर ये 2% जब एटमॉस्फेयर राइज हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट 18% इंसेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, प्लांट 16%, एंड जो वर्टिब्रेट्स है ये ऑलमोस्ट 8% खत्म हो जाएंगे। और ये सब खत्म हो क्योंकि, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर ये भी है कि अर्थ के टेम्परेचर राइज होने से जो अंटार्कटिका में आइस जो जमा हुआ है उसके वजह से जो पोल्स में जो वेल्स एंड पोलर बियर्स जो रहते हैं जो आपका अंटार्कटिका में या ग्रीनलैंड पे, वो सब अपने हैबिटेट्स को लूज कर देंगे, अपने घर खो देंगे, जिसकी वजह से वो भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग और कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है, दैट इज ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2017 का ये डेटा है। और अगर हम एक और चीज देखा जाए, अगर अंटार्कटिका की का आइस अगर मेल्ट करने लगे तो उससे क्या होगा, हमारा सी लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा। सी लेवल इंक्रीज करने से क्या होता है, जो इंडिया के कोस्टल जोन्स है, चाहे कोलकाता, चेन्नई, गोवा, मुंबई, तमिलनाडु, ये सारे सब जो है ये सबमर्ज हो जाएंगे, पानी के अंदर आ जाएंगे। इसका वन ऑफ दी और रीजन होता है कि जब क्लाइमेट कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है तो ओशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। जब ओशन एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड तो ओशन के अंदर होता है कोरल्स। ये कोरल्स क्या होता है, जो आपने रिसेंटली सुने होंगे अभी इस साल ऑलमोस्ट 3 साइक्लोन्स आ चुके हैं, आई थिंक आई फॉरगॉटन द नेम ऑल्सो। ये 3 साइक्लोन्स आ चुके हैं। ये साइक्लोन्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये साइक्लोन्स को रोकता है कोरल्स, एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कोरल्स खत्म हो जा रहे हैं इस दुनिया से। इसके वजह से साइक्लोन्स जो है हमारा बढ़ते जा रहा है। मेजर पार्ट ऑफ दी सही बात है। आई थिंक एक चीज बहुत अच्छा बोला, 1-2 डिग्री बढ़ने से क्या होगा। मैं एक और सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ 1-2 डिग्री बढ़ने से क्या हो सकता है। हमारी बॉडी टेम्परेचर भी 2-3 डिग्री जब बढ़ती है तो ऑलमोस्ट हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो हाँ जी, 1-2 डिग्री से बहुत कुछ होता है एक्चुअली। हाँ 0 डिग्री पे आइस फ्रीज करती है, 1 डिग्री पे मेल्ट कर जाएगी हाँ ऐसे। जी।
तो और या उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे ही है, 100 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद लेटेंट हीट वगैरह अगर किसी को याद है तो वो सब होता है, बट अगेन 101 पे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो 1-2 डिग्री से बहुत फर्क पड़ता है। बहुत एंड ये जो एंटार्क्टिका या रादर नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों को ले सकते हैं, ये बर्फ पिघलने से ऑब्वियसली सी लेवल इंक्रीज करेगा एंड ये होगा। तो इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आई थिंक हम लोग हमेशा ये टर्म ग्लोबल वार्मिंग यूज़ करते हैं, बट व्हाट आई सी फ्रॉम द लास्ट 2 डिकेड्स एटलीस्ट, हम्म, कि 2 डिकेड्स नहीं, 1 डिकेड बोल सकते हैं थोड़ा, गर्मी में चीज़ें थोड़ी गर्म हो जा रही हैं, ठंड में चीज़ें थोड़ी ठंड हो जा रही हैं। आई डोंट नो, कोविड में थोड़ा सा एक्सेप्शंस हो गया, आई थिंक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया चीज़, बट उसके पहले तो ऑलमोस्ट यही हो रहा था। तो हम लोग जब ये ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, आर वी ओनली टारगेटिंग वार्मर साइड, बट आई सी इवन कोल्ड इज गेटिंग कोल्डर। आपका क्या इसमें व्यू है, और बस और कुछ? नहीं, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये खाली विंटर और गर्मी में नहीं होता है। ये एटमॉस्फेयर जब हमारा टेम्परेचर अर्थ की एटमॉस्फेयर से टकराता है, तो जो सन की जो रेज है वो जब एंटर करती हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो वहां से रिटर्न बैक नहीं हो पा रही, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ट्रैप कर ले रहा है, जिसके वजह से गर्मियों के दिन में और गर्मी हो जा रही है। बट वही अगर इन टर्म्स ऑफ अगर हम विंटर सीजन में लें, विंटर सीजन में भी सन का रेज अंदर आ रहा, बट वहां से जो रेडिएशन जो बाहर जा रहा है वो बाहर नहीं जा पा रहा, वो अंदर ही स्टोर हो जा, बल्कि वो जमीन के अंदर स्टोर हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो पानी का जो एब्जॉर्प्शन, जो सरफेस लेवल ऑफ वाटर जो है वो इवेपोरेट हो पा रहा सही से, उसके वजह से ठंड और बढ़ जाती है। श्योर श्योर। और आई मीन, तो इसको हम लोग, तो आपकी जो डिवाइस या हम्म, प्रोटोटाइप जो है हम्म। वो ऑलमोस्ट पेड़ का काम कर रही है। हाँ जी, ये मेरा एक डिवाइस है, सबसे छोटा वाला डिवाइस, जिसको आप बोल सकते हैं 3 स्क्वायर, मतलब ऑलमोस्ट 9 स्क्वायर फीट एरिया का है। 9 स्क्वायर फीट एरिया, आप समझ लीजिए कितना छोटा होगा। ये एक सिंगल डिवाइस आपका ऑलमोस्ट 2094 ट्रीज का काम कर रही है। एक ट्री एक साल में ऑलमोस्ट 40 to 50 kg मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, एंड 40 साल की ओल्ड पेड़। मेरा सिंगल डिवाइस जो है 2294 ट्रीज का सेम अमाउंट को कैप्चर करेगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सुनने में तो लग रहा है। तो ये अगर एक नॉर्मल पेड़ से कंपेयर करें, या ग्रास से, या पौधे से, जो भी साइज का प्लांट है, तो व्हाट इज इट इक्विवेलेंट टू, लाइक इज इट इक्विवेलेंट टू अ लाइक अ बिग ट्री और 10 trees, like how do you, I mean, is there any assessment you did? यस, आई थिंक टेक अ ट्री ऑफ 40 years old, आपने 40 साल पुराना कोई भी एक पेड़ पकड़ लीजिए, वो पेड़ साल भर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेगा? आई थिंक 40 kg मैक्सिमम एक साल में। और हमारा डिवाइस जो है एक साल में कैप लेता है ऑलमोस्ट 51 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कंपेयर दैट। करेक्ट। और एक्चुअली प्लांट का एक और है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस के टाइम दे डू दिस CO2 करेक्ट, करेक्ट, एक्सचेंज करेक्ट, टू, करेक्ट, करेक्ट। एंड ब्रीदिंग के लिए तो प्लांट भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। वो इट्स ऑक्सीजन जस्ट ही दैट, लेंगे। इट्स जस्ट दैट कि डे टाइम में दे प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन, सो अपना करेक्ट। भी पूरा कर लिया उन्होंने जो ब्रीदिंग के लिए चाहिए था उन्हें, वो प्लस 25% ले लेते हैं अपना जितना 25% छोड़। ले लेते हैं। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि ये ना, ये बहुत दिन तक बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, हाँ सुबह जी। ब्रीदिंग भी CO2 की होती है, तो एक्चुअली करेक्ट। ब्रीदिंग नहीं होती है, इट्स जस्ट द फोटोसिंथेसिस is separate and breathing is separate. So plants are actually, you can think na, they are capable of producing their own oxygen, own food या जो भी है, मतलब some kind of mineral etc, plus लोगों के लिए भी। और वही अभी तक होता आया है ना, उन हाँ खुद जी। के लिए खुद से ज़्यादा प्रोड्यूस किया। किसान किसान जैसा रोल किसान। है कि अपने राइट। खाने के लिए भी कर लिया, और रात को लेकिन वो ऑब्वियसली अगेन किसान जैसा सो करेक्ट। जाते हैं, तो रात को वो नॉर्मल ऑक्सीजन लेते हैं, जो अभी फैजल जी ने बोला कि 25% तक ऑलमोस्ट 24 आवर्स या जो भी है, मतलब ऑन एन एवरेज कंज्यूम कर लेते हैं, बाकी का 75% इट्स फॉर ऑल, राइट। राइट। एंड एक और चीज़ आई थिंक, अभी कोविड में हमने देखा कहीं ना कहीं लोगों को बहुत सारा ऑक्सीजन की कमी हो गई, जो भी है, मतलब ऑब्वियसली इट्स एन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, कैनॉट बी कंपेयर्ड डायरेक्टली, बट इवन दो इट वाज आर्टिफिशियल,
अगर आपको कमी हो रही है या जो भी है, कहीं ना कहीं वो भी रिलेट करेगा, आई डोंट नो, कुछ पार्ट मास्क से या कुछ पार्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, और कुछ अपना खुद का लेजी हैबिट से भी, कि हमने जो फ्री की ऑक्सीजन है वो भी कंजूसी से लेते हैं। सर आई विल करेक्ट यू इन दिस। प्लीज प्लीज। आई थिंक ये जो कोविड का सिचुएशन जो है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज, ये इसको हम लोग डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑक्सीजन की, क्योंकि कोविड क्या है कि कोविड जब इन्फेक्शन बॉडी पे लगता है, उसके वजह से हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं। लंग्स में इतनी कैपेसिटी नहीं रहती है कि वो प्योर ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से सक कर पाए। इसके अच्छा, लिए हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाया जाता है। इसको वी श्योर, तो कैनॉट। बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और थोड़ा पहले जाता हूँ उस लोगों के लाइफस्टाइल में, कि बिकॉज दे वर ईटिंग इम्प्योर फूड और इम्प्योर ऑक्सीजन और एयर में रह रहे थे, उससे भी उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी तो इफेक्ट हुई होगी ओवर द टाइम ऑब्वियसली। तो आई मीन क्लाइमेट चेंज तो एक चीज़ है, बट आई थिंक ये जो CO2 या पोल्यूटेंट का। पॉल्यूटेंट से उनके लाइफ इफेक्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर करेक्ट देखा जाए तो एक साल में ऑलमोस्ट 13 लाख पीपल्स जो होते हैं उनका डेथ होता है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। करेक्ट करेक्ट। तो कहीं ना कहीं थर्टीन मतलब लाख थोड़ा मोड़ा रिलेशन है। आई मीन वी गॉट वीकर एंड करेक्ट, कोरोना गॉट stronger. द स्ट्रॉन्गर That's वर्ड। why there was some imbalance in the equation, obviously. तो आई थिंक एनीवे, सो विच एवर इट इज, आई मीन ऑक्सीजन, जैसा कि हमने देखा कि CO2 इज द एक्चुअल कल्प्रिट, आई मीन द रेशियो रादर, करेक्ट। CO2 वर्सेस ऑक्सीजन का जो रेशियो है, विच इज ऑन द CO2 साइड गेटिंग हेवियर, तो दैट इज causing this climate change and all. तो थोड़ा सा इस पे और डिटेल पे, आपने तो बहुत ज़्यादा स्टडी किया होगा, ये जैसे अंटार्कटिका वगैरह की बर्फ़ जब पिघलेगी तो सी लेवल राइज करेगा, तो आपने कुछ कहा कि 6% या समथिंग स्पीशीज एक्सटिंक्ट करते जाएंगे विथ एवरी डिग्री और सो, राइट? तो ये जो एक्सटिंक्शन होगा पहले लाइक कोरल रीफ्स का ही होगा, ये नहीं नहीं कुछ नहीं थोड़ा नहीं सा नहीं, कोरल रीफ के बारे में थोड़ा करेक्ट डिटेल करेक्ट, बताइए। मैं बताता हूँ। ये क्या, ये जो एक्सटिंक्शन जो बताएं, ये अर्थ टेम्परेचर का इंक्रीज होना 1.5 डिग्री और 2 डिग्री। 1.5 डिग्रीज में 6-8% आपका इंसेक्ट्स क्या की डाई होगी, प्लांट्स ऑलमोस्ट 8% रहेंगे और वर्टिब्रेट्स 4% है। ये इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओशंस और ए ग्लोबल वार्मिंग। जो हमारा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो अर्थ हैज टू, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू कॉल इट, सेल्फ हील करना। अर्थ इज सेल्फ हीलिंग, खुद को सेल्फ हील करके आई थिंक वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ये ओशंस हमारा। ओशंस के वजह से क्या हो रहा है, ओशन जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है तो ओशन इज मूविंग टूवर्ड्स एन एसिडिक। ओशन जो होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए या बेसिक होना चाहिए, क्योंकि उसमें सॉल्ट वाटर है। बट कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होने की वजह से वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स बिकमिंग एन एसिडिक। और एसिडिक बनने की वजह से जो कोरल से जो बेस, समुद्र के बेस में रहते, ओशंस के बेस में रहते हैं, वो मर जा रहे हैं। जिनके वजह से ये जो साइक्लोन्स, ये टोर्नेडो जो आते हैं, ये इसी की वजह से आते हैं, क्योंकि ये साइक्लोन्स को रोकता है कोरल्स, कि आप अर्थ के सॉरी लैंड पे आप अंदर नहीं जाइएगा, बाहर तक ही रहिएगा। बट ये कोरल्स ही मर जा रहे हैं, इसलिए वो टोर्नेडो या साइक्लोन्स अंदर चले जा रहे हैं। तो ये साइक्लोन का कैसे रिलेशन है कोरल से, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? जब साइक्लोन का जो प्रेशर रहता है, जब घूमता है गोल गोल, तो अर्थ के नीचे के प्रेशर्स जो रहते हैं वो कोरल्स उसको रोकते हैं। मतलब उनको एक एज ए काइंड ऑफ स्टॉपर यूज करते हैं कि आप आगे नहीं जाइएगा, आप यहीं तक आपका स्टॉपेज है, यू कैन नॉट गो मोर देन दी ओशन। आप लैंड पे नहीं जाना, आपको ओशंस तक ही रहना। उनका जो प्रेशर है ओके। वो बिल्डअप हो जाता है उस पे। और जब वही गोल घूमते घूमते आपके लैंड पे आ जाते हैं, तो उसके वजह से डेवस्ट्रेशन होते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। ओके ओके, सो इट्स काइंड ऑफ अ चेक पॉइंट काइंड ऑफ, की कोरल्स अगर हैं एग्जैक्टली, ओशन कोरल्स में है तो तो वो बच्चे रोक लेंगे उसे, रोक लेंगे, टोर्नाडो को साइक्लोन्स अंदर बाहर नहीं नहीं जाने आएंगे। देंगे, हाँ, लैंड पे नहीं आने देंगे। लैंड पे नहीं आने देंगे। हाँ करेक्ट जी। करेक्ट करेक्ट। ओशन में मतलब साइक्लोन सदियों से चला आ रहा था, हाँ, अब लेकिन लैंड पे लैंड नहीं पे आ आता गया था। है, ये करेक्ट। प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये कोरल्स की वजह से होते हैं। वो कोरल्स मर जा अच्छा, रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग ओके, की मतलब वजह उनको रोकने का जो पावर था
तो वो वो खत्म हो पावर गया। ही खत्म हो जा रहा है लैंड में रहने वाले आई जीव गिव यू जंतुओं की वजह से। नहीं, हाँ करेक्ट, ऑलमोस्ट 49% कोरल्स जो है वो मर चुके हैं। हाँ हाँ, 49%। हाँ जी। दैट्स वेरी सैड टू हियर। और ये जो ये डेथ हुआ कोरल्स का, हाँ जी। ऑलमोस्ट 50% ही बोल रहे हैं, हम्म। ये कितने दिन की मतलब लाइक कितने दिन में बिल्ड हुआ ये, मतलब पिछले 100-200 साल टाइप्स फ्रॉम या? 1900 से 2000 तक आ जाएगी, ऑलमोस्ट 100 years। तो ऑलमोस्ट मतलब सुनने में तो ऐसे ही लग रहा है कि हम लोग एक्सटेंशन के तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो अगर कुछ नया किया दैट्स गया, व्हाट या आपके जैसे दैट लोग थोड़ा सा कुछ ना करें। मैं तो वही बोला, अगर 2% पहुंच गया तो हर चीज पे प्रॉब्लम होगी। हर चीज में अगर हम पेड़ काट दे रहे हैं तो पेड़ काटने से क्या होगा, पेड़ हम क्या होता, पानी को रखता है अपने अंदर, एटमॉस्फेयर मेंटेन करता है। पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी नहीं रहेंगे, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन में आप देख लीजिए, सब जगह पानी की शॉर्टेज चल रही है। पानी की शॉर्टेज है। दूसरा आप देख रहे हो फार्मर सुसाइड, आपको पता ही है लास्ट ईयर कितने सारे हो रहे हैं, अभी भी पंजाब में ये सारे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इस पानी नहीं है उनके पास, प्रोडक्शंस नहीं हो पा रहे हैं सही तरीका से। दैट इज इंटर्न इफेक्ट। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ समय आने के बाद ऑलमोस्ट 10 to 15 years ये फार्मर सुसाइडल रेट और इंक्रीज करेंगे, क्योंकि क्रॉप्स की शॉर्टेज होने वाली है, अभी डिमांड बढ़ने वाला क्रॉप्स का। नाउ द प्राइसेस विल गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग ऑफ दिस क्रॉप्स, वेदर इट्स अ राइस, आप आटा बोल लो, रोटी बोलो, कुछ भी बोलो यार, सब बढ़ने वाले हैं अभी। करेक्ट करेक्ट। तो अभी आपका, लेट्स से आपने जो डिवाइसेस बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जी। आपका क्या प्रिडिक्शन है, मतलब अभी क्या क्या कर सकते हैं, या एटलीस्ट आप किस किस एरिया में अभी काम करने का सोच रहे हैं या करना शुरू कर दिया है, या मतलब आपकी डिवाइस कहाँ तक हेल्प कर पाएगी, आई मीन कैन इट रियली नलिफाई द इफेक्ट, और हाउ मच टाइम विल इट टेक, या उसमें आपका कुछ मतलब कुछ वेल कैलकुलेशन दैट्स वगैरह किया है? वेल दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग है कि गवर्नमेंट नीड टू टेक ए प्रॉपर मेजरमेंट इन दिस। विदाउट द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट वी आर नोवेयर। गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना, आपको याद होगा 2015 में देयर वर कॉल्ड अ पेरिस एग्रीमेंट, इफ यू हर्ड इट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2015 पे पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट है क्या, ऑलमोस्ट इन वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सारे कंट्रीज जो हैं वो पेरिस एग्रीमेंट साइन किए थे कि हर कंट्री अपने कंट्री से कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा। बट अभी तक इंडिया जो है जीरो पे खड़ा हुआ है। दे हैव नॉट डन एनीथिंग, नॉट येट। तो हमारा डिवाइस अगर गवर्नमेंट इस पे साइड देता है तो वी कैन इन अ कमिंग ईयर्स, लेट्स टॉक कि हमारा जो प्रिडिक्शन, जैसे साइंटिस्ट लोगों ने प्रिडिक्शंस किया ऑलमोस्ट कि कमिंग 50 years हमारा टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 डिग्री तक पहुंच जाएगा। 2 डिग्री पहुंचने से पहले हमें इस डिवाइस को इतना लगाना होगा ताकि एटमॉस्फेयर का सारा कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैप्चर कर सके। सारा नहीं, ऑलमोस्ट 50% भी कैप्चर कर सके तो हमारा क्लाइमेट जो है काफी तक सेव हो जाएगा। हमारा फ्यूचर जनरेशन, जो किड्स आने वाले फ्यूचर्स में, उनके लिए सेव हो जाएगा ये प्लानट। लेकिन हम लोग अभी क्या छोड़ के जाएंगे उसके लिए, पॉल्यूशन, काला धुआं। करेक्ट करेक्ट। और अभी जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी, जैसे कर्फ्यू हो गया था, सेमी कर्फ्यू हो गया था, इससे भी कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस नहीं हुआ होगा क्या आपके हिसाब से? सर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये चल रहा है, जो आप घर में इलेक्ट्रिसिटी चला रहे हो, लाइट बल्ब, फैंस, टीवी एंड ऑल दिस, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी? दीज आर जनरेटेड बाय अ कोल पावर प्लांट। और कोल पावर प्लांट बंद नहीं हो सकता, बंद होगा तो आपके घर में लाइट नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सोलर बिल्डअप करे, क्योंकि सोलर सर बिल्डअप। आई विल इंटरप्ट यू हियर। श्योर प्लीज। एक्चुअली ये जो 100 वाट के बल्ब होते हैं ना, ये भी 360 kg CO2 छोड़ते हैं। हमारे जो फैंस होते हैं वो हमारे घर में ही छोड़ते हैं, जो रहते हैं ना वो जाले वगैरह वगैरह, वो CO2 ही तो है। CO2 में धूल वगैरह मिक्स रहती है, तो ये तो नहीं यहाँ पर भी है, और साइड में तो जहाँ से आ रही है वहाँ पे वो एक्स्ट्रा है। नहीं नहीं, घर में नहीं, मैं समझा नहीं, आप फिर से बताइए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जो बल्ब जलता है ना 100 वाट का, हाँ जी। वो 360 kg CO2 हाँ जी। प्रोड्यूस करता है एक ईयर में आपके घर पे। मेरे जो घर पे। फैन, हाँ अच्छा। जो फैन भी चल रहे हैं ना वो भी CO2, वो एग्जैक्टली मेरे को फिगर नहीं पता, वो भी CO2 प्रोड्यूस करता है घर पे।
फिर वो कोल से जहाँ हो रहा है वो अलग हो रहा है। तो डिवाइसेस जो हैं वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ CO2, अच्छा मतलब अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिवाइसेस, में यूज करें, हीट ओके। के वजह से। हीट की वजह से। हीट के वजह से फिर वो एनर्जी जो ये चेंज हो रही है, रीजन मेरे को नहीं पता, बट यस 360 केजी। स्टिल आई गॉट शॉक्ड बिकॉज मुझे पहली बार पता चला ये चीज। ओके, मैं अभी चेक करता हूँ, हो सके तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, गूगल पे एनीवे चेक होगा करता भी हूँ। तो शायद माइनर कंट्रीब्यूशन होगा। आई थिंक व्हाट यू आर हिटिंग इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूटर्स रैदर, तो करेक्ट। मतलब इंडिया में जो है। अच्छा, कोल एक हो गया, और कौन सा, आई मीन आपके कोल वाले, ऑटोमेट कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, उसके आपके अलावा? ऑटोमेट ऑटोमे व्हीकल्स हो गए आपके, व्हीकल्स ऑलमोस्ट कोरोना में तो व्हीकल्स कम हो गए ना थोड़े से सर व्हीकल्स चलने, तो कम हो गए बट प्लेन तो चल रहे थे। ट्रेन चल रहे थे, ठीक है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा कि बंद कर दिया गया, मुझे बस एक क्यूरियोसिटी था कि कोविड में हो सकता है थोड़ा सा फुटप्रिंट पे आई असर थिंक पड़ा हो। सर लास्ट ईयर मुझे याद है, आई थिंक व्हेन लास्ट ईयर जब कोविड बंद नहीं हुआ था, आई थिंक उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था 414 पार्ट्स पर मिलियन, एंड आज के डेट का है 418 पार्ट्स पर मिलियन, 14 15 16 18, ओके, ऑलमोस्ट 3 ppm जो लेवल इंक्रीज हुआ है पिछले एक साल में। और उसके पहले कितना होता था इंक्रीज? सर उस समय तो आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, ओके, कोई नहीं स्पेसिफिक नहीं, मतलब डिड इट एक्सेलरेशन स्लोड डाउन, या दो तीन हर नहीं बार, हर नहीं, साल ही ये चल रहा है एक्चुअली ऑलमोस्ट? वो हर साल बढ़ते जा रहा है, एक डिग्री आपका। इस ओके, साल तो ज्यादा हो गया आपका, तीन ज्यादा, बहुत ज्यादा भाग गया, 3 पॉइंट। श्योर। तो अभी जैसे आपने जो ये डिवाइस को यूज़ किया होगा, या प्रोटोटाइप, या जैसे भी आपने इसको टेस्ट कैसे किया, मतलब लाइक कोई एक बंद चेम्बर में परसेंटेज निकाला, उसके बाद उसको रख के लाइक ऑब्जर्व किया कुछ दिन बाद, लाइक कैसे आपने इसको वेरीफाई वगैरह किया कि ये कितना इफेक्टिव है? आई थिंक ये डिवाइस को मैंने बैंगलोर की एक यूनिवर्सिटी में टेस्ट किया था। बैंगलोर के ओपन यूनिवर्सिटी है जहाँ मैंने ओपन ग्राउंड पे उसको रखा था, जहाँ पर मैंने मेजर किया था एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन लेवल इज जीरो, नॉट जीरो एग्जैक्टली 32 pm. So it means that it's a very clean air. You can breathe it. You do not have any problem in 32 parts. So now in that scenario, मैंने उस डिवाइस को रखा। Currently मैंने मॉर्निंग में इसको स्टार्ट किया ऑलमोस्ट नियरली 10 o'clock के आसपास, एंड उसको कंटिन्यूसली 2 घंटे 3 घंटे टिल ऑलमोस्ट नाइट तक मैंने उसको रन किया। रन के बाद मैंने उस केमिकल को ले गया, मैं आई थिंक रात को 10 बज गया था, मैं उस केमिकल को मुझे टेस्ट करना था सेम डे इटसेल्फ। So I talked to my professor, I think who is one of my what do you call it advisory board, and he is basically ex ISRO scientist. He is with me, and he told me कि भैया अभी तो आपका बंद हो गया होगा सारे labs, तो आप इसको करोगे कैसे? तो I tell sir we have to do the experiment today itself by any cost, क्योंकि फिर आज दिन भर का मेहनत और जो केमिकल के जो कॉस्टिंग्स लगे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज, ये हमारा वेस्ट चला जाएगा, इसको कुछ यूज करना होगा। तो ही टोल्ड मी ओके जस्ट गिव मी फ्यू मोर आवर, आई विल जस्ट टॉक टू देम। इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ कॉल किया, आई थिंक ही ओपन द लेबोरेटरी फॉर मी। हम लोग रात में 12 बजे पहुंचे हैं, रात को 12 बजे लैब रिपोर्ट लैब टेस्टिंग हुआ है, रिपोर्ट बनने के रात का 3 बज गया हमारा रिपोर्ट बनते बनते। उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिला कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एग्जैक्टली कैप्चर्ड हो रहा है इस डिवाइस के अंदर। And I'm very श्योर, thankful to that professor who helped me. He is basically a scientist in ISRO. करेक्ट करेक्ट। और आपकी टीम वगैरह फॉर्म हो गई है? कितने लोग काम कर रहे हैं अभी इस आई थिंक प्रोजेक्ट पे? मेरे टीम पे सारे पीएचडी ओनर्स हैं। आप चाहे वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन पे बोलिए, चाहे वो केमिकल डिवीजन पे बोलिए, या व्हाट यू कॉल एरोनॉटिकल्स डिवीजन पे, डायनामिक एयर डायनामिक्स में, दीज आर द प्रोफेसर्स हु आर एक्सपर्ट इन देयर स्पेसिफिक डोमेन्स। दे आर बेसिकली फ्रॉम द सम ऑफ देयर फ्रॉम द यूएस आल्सो। खाली मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो ग्रेजुएट हूँ, बाकी सारे बंदे अच्छा, पीएचडी ओनर्स हैं। sure. Yeah. So for audience, if anyone have any question, please feel free to raise your hand. I'm asking one more question and you can go ahead after that. So एक और question था, ये जो लोग आपने ढूंढे 5-10 जो भी होंगे, ये कैसे कैसे ढूंढा, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये स्टार्टअप वगैरह में ये भी एक प्रॉब्लम होती है
कि आप टीम कैसे फॉर्म करें शुरू में? तो सबसे पहले मुझे जब ये आइडिया आया तो मैं इस आइडिया को डिस्कस करने के लिए एक कंसर्न पार्टनर ढूंढ रहा था, बट मुझे लगातार 1 साल तक कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिला जिसकी मेंटालिटी मेरे से मैच कर रही हो, क्योंकि ऐसा डिवाइस बनाना था जो सुनने में इम्पॉसिबल लगे बट एक्चुअली में ऐसा हो सकता है। तो आई यूज टू टॉक विद एन नंबर्स ऑफ पीपल्स। मैंने काफी सारे लोगों को अपने आइडियाज बताए, दे यूज टू लाफ एट मी कि ये यार कुछ नहीं होने वाला है, पेड़ लगाओ, पेड़ से सब शांत हो जाएगा। मैंने कहा भैया पेड़ नहीं होने वाला, पेड़ खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, आपको उसका अल्टरनेटिव लाना पड़ेगा। ही टोल्ड कि नहीं मेरे से नहीं होगा, आप जाओ जाओ। तो आई थॉट, फिर मैंने एक रिसेंटली आई थिंक मैंने एक यूनिवर्सिटी में गया कुछ काम की वजह से। तो मुझे एरोडायनेमिक्स के प्रोफेसर, मुझे जो बेसिकली रॉकेट इंजन पे काम करते थे, आई एक्सप्लेन हिम द प्रोजेक्ट कि सर मेरा ऐसा ऐसा काम है। तो ही साउंड्स कि भैया आप तो काफ़ी अच्छा नॉवल आइडिया है, तो मुझे पता नहीं ये कितना वर्क करेगा, बट आपको सोचना पड़ेगा कुछ काम करने के लिए, इसमें पैसे काफ़ी लगेंगे। मैंने कहा सर पहले हम लोग एजम्पशन, पहले आप रेडी तो हो जाइए, फिर हम लोग बात करेंगे इस पे क्या करेंगे। ही टोल्ड कि ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन जो बनाए हैं आप अपने साइड से आप मुझे हैंड ओवर कीजिए। तो मैंने कहा सर वो फिर लीक आउट तो नहीं होगा। तो वो बोले कि आप एक काम कीजिए, आपकी जो केमिकल का नाम है वो केमिकल आप सेफ साइड कर लीजिए। सबसे पहले आप केमिकल का नाम मत बताइए, आप बाकी थीसिस जो है आप मुझे सबमिट कीजिए। मैंने वो थीसिस उन्हें सबमिट किया। आई थिंक इट टुक अराउंड ऑलमोस्ट 15 डेज। वो रिपोर्ट को सारा स्टडी किए। रिपोर्ट स्टडी करने के बाद उन्होंने एक दिन कॉल किया मुझे, फैजल योर साउंड प्रोजेक्ट साउंड्स टू बी इंटरेस्टिंग, प्लीज कम एंड मीट मी इन दिस ऑफिस। मैंने कहा ठीक है। I ran away the very next day in the morning. He told me कि I am very interested in doing this project, but the financials has to be taken care of by। मैंने कहा ठीक है भैया सर मैं ले लूंगा सारा कुछ। तो वो एक बंदा ऐड हुआ मेरे पास। फिर मैंने सोचा कि अब केमिकल का बंदा चाहिए, अब 3D डिजाइनिंग का बंदा चाहिए मुझे, 3D डिजाइनिंग करे, क्योंकि इतना बड़ा डिवाइस का आर्किटेक्चर सही होना चाहिए। आर्किटेक्चर काम नहीं किया तो एयरोडायनेमिक्स जो एयर फ्लो डायग्राम से वो काम नहीं करेगा। जो एब्जॉर्प्शन रेट हो रहा है, जो रिएक्शंस हो रहा है एयर और केमिकल के बीच में, वो उसके लिए एरोडायनेमिक्स होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो काम नहीं। उसके बाद हमारे केमिकल्स के प्रोफेसर्स को मैंने इन्वॉल्व किया। फिर मैंने सारे टीम बनाई, उसके बाद वर्कआउट। फिर सडनली मुझे एक बंदा मिला, ही इज बेसिकली एंड व्हाट वीपी ऑफ टीसीएस कंपनी। उनको मैंने अप्रोच किया, ही लाइक माय प्रोडक्ट। तो बोला कि भैया मैं आपके साथ काम करूंगा। तो मैंने कहा सर मेरा तो ऑलरेडी काफी सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो बोला कि ठीक है, तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, अब आगे का इन्वेस्टमेंट जो होगा आई टेक केयर अबाउट दिस। तो ही ज्वाइंट मी एंड ही बिकम द co-founder of my next this company, and rest other team members who are from this all this, these are the advisory board in my team, and it बहुत took सही। me almost 3.5 years to find a right team on this. करेक्ट करेक्ट, नहीं बहुत मतलब परसिवरेंस दिखाया आपने। लोग तो 2 महीने में ही दम तोड़ देते हैं। तो ये घर And घर की I कहानी think है स्टार्टअप के वर्ल्ड में। इस प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे ऑलमोस्ट टुक मी ऑलमोस्ट ऑफ 6 years. श्योर। इंदर हैव अ क्वेश्चन, प्लीज इंदर। आर यू देयर? आई थिंक सूरज। यस, यस इंदर। आई एम हियर हाँ एक्चुअली। प्लीज बताइए। एक्चुअली मैं पहले तो खुद को करेक्ट करना चाहता हूँ। वो आई गेस घर पे नहीं इलेक्ट्रिसिटी ये होता है, वो पावर स्टेशन में ही जनरेट होता है। तो ये 750 केजी है। एक 100 वाट का बल्ब अगर साल भर अगर जलता रहे तो 750 केजी CO2 पावर स्टेशन में क्रिएट करता है। उसको इतना फ्यूल लगेगा इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ये आपको स्क्रीनशॉट में शेयर कर देता हूँ, अगर इफ यू वांट टू सो यू कैन शेयर दिस। ठीक है, वो मेरा कोल क्वेश्चन से ये ही था। हुआ, मेरे मतलब उतना हाँ हाँ कंजम्पशन हाँ इज हाँ कन्वर्टिंग टू द कोल प्लांट। हाँ 750 केजी, जो कि बहुत होता है 100 वाट That's बल्ब fine, के वाट से। Indrajit. That's not a big deal. I totally या understand. अच्छा, मेरा एक्चुअली ये क्वेश्चन था ना कि ये क्या करता है एक्चुअली? प्योरी एक्सट्रैक्ट करता है CO2 को एटमॉस्फेयर से, या फिर एयर को प्योरीफाई करता है? एक्चुअली डिवाइस क्या करता है? ये दोनों काम करता है। ये एक्सट्रैक्ट नहीं करता, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये एटमॉस्फेयर से हवा को साफ करता है। हवा को साफ करने का मतलब पॉल्यूशन को भी साफ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी हवा से हटाता है। ओके, अभी एक बार पोल्यूशन को साइड कर देते हैं, सिर्फ CO2 को समझते हैं कि वो भी तो एक पोल्यूशन ही है, राइट? नहीं, CO2 पॉल्यूशन नहीं है। डोंट कॉल दिस CO2 एज अ पॉल्यूशन। ओके, तो पहले एक्चुअली CO2 यहाँ पे मेजर फैक्ट है, तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, देन वी विल कम टू पोल्यूशन पार्ट।
ठीक है। तो इसको एब्जॉर्ब भी करता है और फिल्टर भी करता है, या सिर्फ एब्जॉर्ब करता है? देखो CO2 आप मुझे पहले बताइए, CO2 होता क्या, मतलब वेदर इट्स अ गैस, लिक्विड, और कौन सा फेज में रहता है, या सॉलिड पार्टिकल में रहता है एटमॉस्फेयर में? मेरा कहने का मतलब है, मेरा जो तो मैं समझता हूँ कि ये गैस है पॉसिबली, हाँ तो मैंने ये वही, कार्बन का फॉर्म है जो गैस में है, राइट? कार्बन का फॉर्म नहीं है, कार्बन एक सॉलिड पार्टिकल होता है, और कार्बन ओके, डाइऑक्साइड जो होता है ये गैस पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हम कार्बन से CO2 बना सकते हैं अगर चाहे तो, इज इट राइट? नहीं 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 नहीं, कार्बन एक सॉलिड पार्टिकल्स है, उसको तुम कार्बन डाइऑक्साइड पे कन्वर्ट नहीं, अगर तुम कार्बन से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे, यू नीड ए हाई एनर्जी वोल्टेज। उसके लिए आप वैसी अभी तक कोई डिवाइस नहीं बनी है जो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बना दे। ओके ओके, ठीक है। तो अपना डिवाइस क्या करता है, मतलब ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है या फिल्टर भी करता है, क्या करता है? ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है सर। ओके, एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब ये अपने पास रख लिया। हाँ एब्जॉर्ब जी, करने का मतलब यही हुआ कि एटमॉस्फेयर से उसको फिल्टर कर लिया और अपने पास रख लिया, तो इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि इसने एब्जॉर्ब कर लिया CO2 को, राइट? हाँ जी। तो एक्चुअली कैमरा कहने का मतलब ये था ना कि हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, वो भी यही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, एयर से CO2 को ले लेते हैं और उसमें कुछ पाउडर मिक्स करते हैं, फिर उसको आग बुझाने के काम में लेते हैं। लेकिन एक्चुअली वो CO2 तो रह ही गया ना। अभी वो बस ये है कि उसको हमने एक साथ मिक्स कर लिया। अब या तो उसको हम जाके सी में फेंक दें, या फिर कहीं जाके उसको गाड़ दें। अगर गाड़ते हैं, नहीं, जस्ट होल्ड अ सेकंड, आप फिर से मुझे फायर एक्सटिंग्विशर का एग्जांपल दीजिए तो। आई गेस फायर एक्सटिंग्विशर है वो एयर से, राइट, और फिर उसका पाउडर एक मिक्स करते हैं उसको नहीं हैवी नहीं नहीं, बनाने आई एम नॉट गेटिंग यू, आपका आवाज कट रही, फिर से आप नहीं बोलिए। मैं बता देता हूँ। आई थिंक ये मिसअंडरस्टैंडिंग है एक्चुअली। फायर ओके, एक्सटिंग्विशर के अंदर कंप्रेस CO2 होता है। ये उसको एटमॉस्फेयर कंप्रेस से कर देते, नहीं CO2 को लेते हैं। लेके कंप्रेस कर देते हैं। अच्छा, कंप्रेस्ड कंप्रेस, CO2 रहता है उसके अंदर। कंप्रे जैसे कंप्रेस ऑक्सीजन CO2 सिलेंडर जो होता है कहाँ ना, से लेके आते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर CO2 तो कंप्रेसर टाइप का है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो होता है ना, उसको भी तो एयर से ही लिया जाता है ऑक्सीजन को। उसके अंदर और भी गैसेस रहती है, प्योर ऑक्सीजन नहीं रहता एक्चुअली। या फिर रहता भी हो तो फिर वो, मतलब जब छोड़ते हैं तो ऐसे छोड़ते हैं ताकि बाकी गैसेस भी मिले, नाइट्रोजन वगैरह मिले, नहीं तो हाँ फेफड़ा नहीं जल तो आई जाएगा थिंक तो फिर ऑक्सीजन क्वेश्चन ये देने होना से। चाहिए कि जो एब्जॉर्ब कर रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एब्जॉर्ब करके आपकी डिवाइस क्या कर रही है? क्या कर रही है, मेरा कहने का मतलब तो वही था। एब्जॉर्ब करके अगर आप उसको सी में फेंकते हैं तो सेम सिचुएशन आ रही है, और अगर आप उसको हाँ मट्टी में तो डालते हैं तो बताएंगे। फर्टिलिटी कम हो रही है। दिस इज द करेक्ट। क्वेश्चन। तो एब्जॉर्ब करके क्या हो रहा है बताइए फैजल जी। अच्छा, करेक्ट। सबसे पहले मैं अभी बात बताऊंगा कि अभी राइट नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, किस किस टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, ये किसी को पता है? इंद्रजीत, आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, और हाईएस्ट कंजम्पशन कौन है या कंज्यूमर कौन है कार्बन डाइऑक्साइड का? आप ही बता दीजिए। फूड एंड ब्रिवरेज इंडस्ट्रीज, जो आप ओके ओके। खाना जो खाते हैं, एरेटेड जो ड्रिंक्स एरेटेड एंड ड्रिंक्स होते हैं, जो फ्रोजन मीट्स होती हैं, ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब कार्बन डाइऑक्साइड से। हमारा टेक्नो अभी आप जो फ्रोजन मीट खाते हो या फ्रोजन जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो या बियर पीते हो, बियर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अभी के जो करंट कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से आता है, आप मुझे ये भी बता दीजिए। आप जो घर से अपने खाना पीने का सामान जो कचड़े में फेंकते हो, दैट इज गार्बेज। गार्बेज को क्या करते हैं ये लोग, जमा करते हैं, उसको फर्मेंटेट करते हैं। फर्मेंटेशन करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको यूज करते हैं एरिएटेड ड्रिंक्स में। और हमारी टेक्नोलॉजी जो होगी वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से लेगी, दैट इज 100% प्योर CO2 विच कैन बी यूज इन अ फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज। सब सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूज इन द लेबोरेटरी ऑल्सो। आपके जो स्किन्स हैं, बॉडी में जो स्किन सेल्स है, ये स्किन सेल्स भी विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड ग्रो नहीं होगा। उसके लिए भी मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन चाहिए आपकी बॉडी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो पूरा सर्कुलर इकोनॉमी जैसा बना दिया आपने हाँ कि जी इधर सर। से ये लो, इसको भी यूज करो, उसको भी यूज करो सबका भला हो गया। मैंने एक चेन साइकिल क्रिएट किया हूँ, क्योंकि रादर देन कि आप कार्बन डाइऑक्साइड कहीं और से लेके उसको वेस्टेज करो, उससे बेटर है कि मैं उसको आपको चेन साइकिल बना दूं, ताकि वो CO2 का वेस्टेज कहीं ना हो और हमारा क्लाइमेट का सिचुएशन भी हैंडल मेंटेन बना रहे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आपका एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी बन गया। आई मीन इफ समबडी करेक्ट, वांट्स टू बाय द क्योंकि CO2
और सोशल इवन कॉज के लिए तो कोई भी पैसा नहीं देने वाला है मुझे। जो भी है, मतलब फ्री में भी ले लिया या व्हाटएवर है, उसको करेक्ट रिसाइकल कर दिया। करेक्ट। अच्छा मधुसूदन, यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज। Yes, sir. Good evening, everyone. Sir, you said that product, no, sir. Is there any video or anything about that project, that Yes, I do model? have it. Yes. So, can you please present it, sir? आप शेयर कर पाएंगे क्या, अगर आपको अलाउ करेंगे तो? I क्योंकि आपको can. अलाउ करना होगा I think I'll share you my YouTube link. I think it's better. हाँ You can प्लीज see the video. यूट्यूब लिंक Yes, sir. चैट Okay. में शेयर कर दें। विशाल सर, एक तो Any, डाउट ही रही। हाँ हाँ आते हैं। हाँ बोलो इंदर। अब मैं ये कह रहा था कि एक तो मुझे याद आ गया, क्लास 9 में लाइफ साइंस के सर ने बताया था कि CO2 अगर हम इनहेल करते हैं तो ये हमारे लिए हेल्थ के लिए खराब है, लेकिन अगर उसको हम पी लेते हैं तो ये हेल्थ के लिए अच्छी चीज है। ये तो मुझे पता है क्लास 9 से। तो अभी ये क्लियर हो गया कि हम CO2 को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से, राइट? इनके डिवाइस के थ्रू, ठीक है, डिवाइस के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये था कि चलो ठीक है, अभी वो कचरे से नहीं लेते हैं CO2, अभी यहाँ से ले लेते हैं। तो कचरे को भी तो जब CO2 अभी भी तो वो तो कचरा तो रह ही गया ना। मतलब वहां पर तो कि कचरा पहले थोड़ा कम हो रहा था, CO2 निकाल लेने से वो थोड़ा और वीक हो जा रहा था। तो चीज तो आई गेस दोनों ऑलमोस्ट इक्वली है। समझे, ज्यादा कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है। या हो सकता है कि कम एनर्जी लगे यहाँ पे ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने से, जाहिर सी बात है डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? किसने ये क्वेश्चन पूछा? इंदर। मैंने इंदर, आप फिर से आइएगा दोबारा। आपको पता नहीं पता वॉइस कट क्यों रही है? मैं वो रिपीट कर देता हूँ। उसने बोला कि कचरा तो रह ही गया ना, मतलब CO2 डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्व करो या जो गार्बेज था वहाँ से निकालो। तो अगर इधर से आपने कंपनसेट कर दिया है तो वो कचरा जो रिसाइकल होना था या जो भी होना था उसका, वो वहाँ नहीं हो पाया। इज इट लाइक नलिफाइंग द इफेक्ट और ओवरऑल स्टिल बेटर? आई मीन ये क्वेश्चन। अच्छा, देखिए, कचरा जो है उससे कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर हो रहा है अभी करंट मार्केट सिनेरियो में? इज ऑलमोस्ट 20%। रेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड 80% है, दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द जियोस्फीयर इन द टर्म्स ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, इन टर्म्स ऑफ कोल, इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। 20% को आप कुछ नहीं कर, 20% में भी आपकी आधा से ज्यादा कचड़े पड़े हुए हैं रोड पे। आप दिल्ली में चले जाओ, आप दिल्ली में आपको पहाड़ मिल जाएगा कचड़े का, वहां कुछ नहीं होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस उसी से होता है जो वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स को प्रोसेस करके से वहां से आपको निकाला जाता है। बट उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं। उसको मेंटेन करना। इंदर स्टे ऑन म्यूट। हाँ तुम्हारा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ फैजल जी प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, आई वाज इन मिडिल ऑफ समथिंग, आई फॉरगॉटन। नहीं यू आर सेइंग कि फर्मेंटेशन वगैरह से CO2 आता एक्चुअली है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कोल से जो CO2 जा रहा था, अभी ये कि वो तो वहां पर रह ही गया कोल वाला CO2, अभी ये CO2 यहाँ से जा रहा है। तो फिर कोल वाले CO2 का क्या सोल्यूशन है? यहाँ एक्चुअली हमारा पॉइंट है कि CO2 को अर्थ से क्लीन करना, वो तो रह ही जा रहा है। अब ये है कि बस ये थोड़ा कम प्राइस में अवेलेबल करवा पाएंगे कि यहाँ पर भी एक मशीन दे दिया पास में, तो लाना नहीं पड़ेगा स्टेशन से जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है CO2, वहाँ तो फिर वो प्रोड्यूस हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन। नहीं तो इसका कहना है कि बेसिकली इकोसिस्टम को समझे कि देयर इज अ प्लस, देयर इज अ माइनस। CO2 कंज्यूम हो रहा है एक तरह से, आप एक और जरिया बना रहे हैं CO2 कंजम्पशन का, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके। इज इट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम? आई मीन आर यू ओवरऑल इज इट गोइंग ऑन द गुड साइड और द बैड साइड? आई मीन ऐसा हो रहा है क्या, जैसे होता है ना पैसे में बोलते हैं किसी का गेन किसी का लॉस होता है। तो अगर आपके CO2 को यूज किया जा रहा है, ठीक है, लेट्स फॉरगेट अबाउट माय टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं अपनी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करता हूँ। तो इन द फ्यूचर कितने साल तक ये क्लाइमेट चेंज होगा? आप बताइए। क्योंकि एज पर द यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट, अभी का जो क्लाइमेट सिचुएशंस है
अभी जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसको हाफ करना है विद इन हाफ ए डिकेड इट मींस विद इन 5 years। अगर नहीं करते हैं तो ये चेंज का रिस्पॉन्सिबल खुद ह्यूमन बींग्स होगा, क्योंकि आने वाले जनरेशंस, नॉट इवन मी, जो सी शोर में आदमी रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। खाली सोलर कैप्चरेशन टेक्नोलॉजी मेरा डिवाइस नहीं है, इसके अलावा आई थिंक देयर आर मच मोर टेक्नोलॉजी विच इज कमिंग। सोलर carbon dioxide absorption bricks are also there. There are some more technology which is converting carbon dioxide into some different useful compounds also. Great. I think in short what you're saying is अभी जैसा है वैसा छोड़ दिया गया है, कुछ ना किया गया, सिचुएशन कैन बिकम मोर डेंजरस। Worst. यस, ठीक है। तो वो आप यही बोल रहे हैं कि आप सुधार ही अच्छा रहे हैं सर, इतना सिचुएशन तो को। क्लियर हो गया। अच्छा रुको रुको इंदर, अभी और लोग को भी क्वेश्चन अभी सर पूछना है। हमारे हाथ में अच्छा रुको रुको, और लोग को भी क्वेश्चन पूछना है। सो अच्छा प्लीज। हेलो सर, सो माय क्वेश्चन इज, जैसे कि सर ने बताया कि लाइक उनका जो डिवाइस है वो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो उन्होंने कहा कि दैट फॉर्म लाइक अ चेन एंड मतलब यूज्ड इन सेवरल अदर वेज, तो हाउ दे आर गोना डू इट, like how that carbon dioxide from the device, like what is absorbed योर वॉइस in इज, other fields. I am not getting. हाउ इट विल, अच्छा मैं, आर यू आस्किंग हाउ इट विल बी Should I यूज्ड इन, repeat, sir? yeah please repeat, I think you lost the Okay, sir. volume So in my between. question is, as sir has mentioned that his device is absorbing the carbon dioxide from the atmosphere, and as sir has also mentioned that that carbon dioxide which is absorbed from the atmosphere can also be used in other several ways, like it's formed like kind of chain that we can use it in other ways. So how exactly we're going to extract that particular absorbed carbon dioxide to use in several ways, like other ways, how we can extract that or how we can use that? It means that while absorbing this carbon dioxide in our device, how you're going to extract that carbon dioxide and use in different Yes, purposes. sir. Yes, sir. There are big chain in this. There are a lot of process, chemical process are involved in this to take out the carbon dioxide from specific chemicals. Sir, For this, you need to learn for some more chemistry in this. okay, sir. So my another question is, if you are doing that with any, like you mentioned, maybe I don't know, like any kind of process, will that be worth it? Like the cost and all. Yes, it's an economically feasible device. So the process of extracting, That's like an नहीं the आप, money we're gonna ये जो spend on that. absorb हो रहा है, I think I'll rephrase our question. Yes, sir. Is it absorbing in its current form, or is it changing it to some other compound and then you will again extract it? Yeah, no, मतलब it's how are you doing? absorbing is in the same form itself, Okay. but we are converting into a state. Now we are Okay. carbon dioxide in the atmosphere in the gaseous state, but we are converting that state into a liquid in our device. Then again we are converting back to a gaseous state. Okay. Very similar to the water vapor वाला. Correct, बहुत exactly. लोग use करते हैं पानी के लिए. Sorry sir, no sir, my question was not that. My question was कि अगर हम लोग उसको extract करते हैं to use in like other several ways, तो जितना उसका cost होगा उस extraction process में, तो क्या वो economically understandable होगा, justified होगा उतना extraction के लिए जो लोग हम लोग invest करेंगे उस पे to use in other ways? Compared to the garbage हाँ, fermentation वाला मतलब process. जितना हमको बेनिफिट हो रहा है एक्सट्रैक्शन से, फिर उसके बाद उसको यूज करने के लिए हम लोग जितना पैसा उस पे खर्च करेंगे, सो इज दैट लाइक इकोनॉमिकली अंडरस्टैंडेबल कि हाँ ओके दैट्स फाइन, उससे हमको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है क्या? CO2 सेल करने वाले. I'll tell her. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोगों ने कैप्चर कर रहे हैं और उसको सेल करेंगे, तो दिस इज एन इकोनॉमिकली फीजिबल, पहला पॉइंट। दूसरा, इससे हमारा, आप अगर गार्बेज से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं, तो वी आर नॉट कन्वर्टिंग इट और वी आर नॉट यूजिंग इट बेसिकली इन टर्म्स, वी आर नॉट सेविंग आवर क्लाइमेट। रादर अगर हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं तो यू कैन सेव द क्लाइमेट आल्सो। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ इन दिस। Thank you sir. Correct. It's kind of recycling CO2 from atmosphere, if you think in some recycling way. Okay, Suraj has a question, please. Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग। Hello. Yes, please continue. Yes, sir. आपके डिवाइस के 1 यूनिट का प्राइस एक्सपेक्टेड क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और
सेलिंग प्राइस? सर सेलिंग सेलिंग प्राइस प्राइस ही बताइए, मैन्युफैक्चरिंग तो क्योंकि सीक्रेट मैं होता है यूजुअली। क्योंकि मैं डिवाइस को सेल नहीं कर रहा हूँ. We are giving. मार्केट प्राइस कुछ तो होगा ना, नहीं, मतलब we are not बाहर देने selling के this लिए। device, sir. So manufacturing and selling price is same, you No, mean? no. We are not selling this device. We are हाँ तो सर giving it as, मैन्युफैक्चरिंग के बता दीजिए. sir, that's what I'm telling you. We are not selling these things. We are using this technology as a service-based model. क्योंकि ये डिवाइस एक Okay. बार बनने के बाद खराब नहीं होती. मैं मार्केट में इसको बेचना नहीं है, मुझे इससे सर्विस बेस्ड मॉडल पे काम करना है, क्योंकि दिस इज द कंटिन्यूअस चेन प्रोसेस. ओके सर. Okay. But अच्छा, तो you will be the one who will install and Yes, see sir. everything, सब कुछ pretty much Because- given as a contract. Yes. Okay. Sure. सर ये आप सिर्फ रूरल एरियाज में करने वाले हैं या अर्बन भी? सर मैं ऑल अक्रॉस ग्लोब पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात आपका आई थिंक आप लोगों ने सुना है कि नहीं, क्लाइमेट लॉन्च पैड के बारे में. देयर इज वन इवेंट गोइंग ऑन विद द क्लाइमेट लॉन्च, दैट यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन की इवेंट है ये. इस पे हमारा पार्टिसिपेशन चलता है. जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी को बात करनी, यूरोप कंट्रीज में हमारी टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करेंगे. दूसरा, लास्ट ईयर बिफोर द कोविड, Brazilians delegates have came to India to see my product device. They have offered me to settle down in Brazil and install their products, but I am not ready with the Brazil. Still pending. But after COVID, from the last 1 year, there is nothing much happened in this. नहीं सर, मतलब मेरा कहना है अगर हम अर्बन एरिया में देखें तो अर्बन एरिया में डिवाइस का इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है और नहीं। उसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा है. देखो, यहाँ पर अगर अर्बन एरिया, अगर रूरल एरियाज में ये डिवाइस को कुछ मैटर नहीं करता है. ये ऑल ओवर द एटमॉस्फेयर, द पोल्यूशन या जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है, ये ऑल ओवर द एटमॉस्फेयर कांस्टेंट है. ये हम रूरल एरिया में लगाएं या सिटी के अंदर लगाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमें नहीं सर, लेकिन प्रोडक्शन की जो डेंसिटी है वो सिटीज में ही ज़्यादा है ना, CO2 ये इमिशन वगैरह. CO2 इमिशंस आपके अकॉर्डिंगली सिटीज में, बट वो वहाँ सिटी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सपैंड करके सिटी के बाहर जाती है, वो एटमॉस्फेयर पे कंबाइन करती है. मैं एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन है 418 पार्ट्स पर मिलियन, इसको एक नंबर्स दिया जाता है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट है, अगर हम 1 मिलियन के यूनिट पे लिया जाए तो वो ऑल अक्रॉस द ग्लोब, चाहे आप समुद्र के बीच में खड़े रहो चाहे सिटी के बीच में खड़े रहो, वो सेम रहेगा. हाँ, सिटी के अंदर जब गाड़ी चलती रहेगी तब ज्यादा हो सकती है, क्योंकि गाड़ी तुरंत छोड़ा है, बट वो हवा हाँ के सर, मैं उसके बारे में बोल रहा था. बट वो हवा की वेव के साथ या गाड़ी की स्पीड के साथ वो कांस्टेंट हो जाता है एक सर्टेन एटमॉस्फेयर हाइट के ऊपर जाके. तो इसका मतलब ये भी है कि पेड़ भी कहीं भी लगाओ, बट लगाओ. करेक्ट. Yes, ओके, ये एक अच्छा चीज़ पता चला, मुझे भी नहीं पता था ये. मुझे लगता था जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन है वहीं लगाना चाहिए सिर्फ, नहीं, बट पेड़ कहीं भी कहीं भी लगाने से लगाओ, लेकिन फर्क लगाओ. पड़ेगा. करेक्ट. इंदर, यू हैव some follow-up question, please. Last question, we'll end then. Indar, you are muted. I'll drop my YouTube link channel Yeah, in yeah, this. please. YouTube there's link आप drop कर there दें. is 3 Chat videos in box में. this. Sure, sure. चलिए ठीक है. Think no other question probably, and we are also 11 o'clock now. So thank you everyone for Hello. coming. Thank you Faisal for Hello, sir. all this. हाँ बोलो, जल्दी से सर पूछो. सर, आई एम बैक. तो कहाँ गायब फैजल सर, रहते हो? अभी ये वाला तो हो गया. वो एक कॉल आ गया था होम डिलीवरी वाले का, तो थोड़ा बस इम्पोर्टेंट बस. था. तो अभी ये CO2 तो ठीक है, अभी हम एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं, इसको सही यूज में भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है. मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा अगर कुछ कर पाया तो. अभी सर ये जो अपना ये वाला है, जो पोल्यूशन को फिल्टर करने वाला, तो और भी मैंने सुना है बहुत सारे मतलब एयर प्योरीफायर आ चुके हैं जिनको अच्छे अच्छे स्केल पे ये किया जाता है, मतलब उनको रेट किया जाता है 2.5 या उससे भी कम बेसी. तो क्या ये अपना उससे भी बेस्ट है या फिर क्या, मतलब उसमें क्या सिनेरियो एयर प्योरीफायर से अगर इसको ये करें तो, कंपेयर करें तो? देखो, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट टॉक अबाउट माय कंपटीशन राइट नाउ. मतलब बेस्ट है या फिर क्या है, मतलब या सिमिलर है?
ये बेस्ट मैं तो कंपेयर नहीं कर सकता हूँ ना, ये तो आप लोग कर सकते हो ना कंपेयर। मैं लगाऊंगा उस नहीं, दिन, आप कंपेयर कुछ कर मैं लेना मार्केट से, क्योंकि नहीं मैं नहीं कंपेयर करूंगा तो आप बोलिएगा सर आप आपका डिवाइस आप अच्छा ही बोलिएगा। नहीं, लेकिन कुछ करेक्ट। पैरामीटर्स तो है ना, आपने टेस्ट तो करवाए बस आप होंगे। बोल दीजिए ना कि मेरा सबसे अच्छा है, बेस्ट है, बाकी बोलना भी चीज भूल चाहिए। जाओ। एक हाँ, लाइन में खत्म बात। अपना दही खट्टा कौन बोलता है फिर भी बोलने को ना कि हाँ मेरा दही मीठा है। मतलब आप क्या बोलते हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट, आपको क्या कॉन्फिडेंस है या? नहीं, मैं आपको बोलूंगा कि मेरा जो एयर प्यूरिफिकेशन डिवाइस है वो ऑलमोस्ट 80% काम करता है। नहीं मतलब मार्केट से बेस्ट है जो अवेलेबल है, या फिर उनके देखो सिमिलर ही है? सर, मार्केट में देयर इज ओनली अ फ्यू कंपनीज, दैट इज एक चाइना में जो एयर बड़ा सा एयर प्यूरिफिकेशन टावर लगाया है। दिल्ली में ठीक अभी है। बनने वाला है 8 करोड़ का लागत से एयर नहीं, मैं प्यूरिफिकेशन। डोमेस्टिक वालों का बात कर रहा हूँ, जो डोमेस्टिकली जो घर पे लोग यूज करते हैं सर उन एयर प्योरीफायर सर से। मेरा एयर प्यूरिफायर डोमेस्टिक से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो है ओके। वो आउटसाइड के लिए, इनसाइड के लिए नहीं है। ओके, ये क्लाइमेट प्योरीफायर के लिए, राइट? क्लाइमेट एंड एयर पोल्यूशन दोनों के लिए सर, कंबाइंड है ये। ग्रेट सर, ग्रेट, यू आर सो डूइंग ए अच्छा, ग्रेट वर्क सर, थैंक यू सो सोच मच रहे क्वेश्चन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। प्लीज। यस सर, एक्चुअली आई वाज आस्किंग कि सर ने बोला कि इसका कोई प्राइस नहीं है क्योंकि वो इसको सर्विस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो उनका भी तो इन्वेस्टमेंट होगा ना इस प्रोडक्ट पे, तो नहीं, वो वुड इट बी प्राइस नहीं है, लॉस? मतलब बेचना नहीं है कि प्यूरीफायर ले जाइए घर पे। वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लेंगे नहीं, 6 महीने साल इन भर। द सेंस आप लाइक प्लीज। नॉट एग्जैक्टली कोई घर पे, बट गवर्नमेंट तो इसको इंस्टॉल करा सकते हैं ना, लाइक कहीं पे भी, तो उसके लिए तो कुछ भी करेक्ट लाइक फैजल, प्राइस डू यू हैव होना एनी चाहिए ना। प्राइस लाइन, हाँ करेक्ट। गाइडलाइन नहीं नहीं, समथिंग? गवर्नमेंट को हम लोग इसको बेचेंगे नहीं, विल गिव हिम गवर्नमेंट इन अ सर्विस बेस इन द सेंस कि भैया मैं इंस्टॉल करके आपके लोकेशन से पॉल्यूशन और कार्बन को कैप्चर करूंगा और अपने पास रख लूंगा, मुझे साल का इतने पैसे दे दीजिएगा। आपको डिवाइस खरीदने का जरूरत नहीं है। सपोज अगर डिवाइस का दाम 1 करोड़ भी होगा तो गवर्नमेंट को 1 करोड़ देने की जरूरत नहीं है। आपको 1 घंटे 1 साल के लिए यूज चाहिए तो आप 1 साल में 1 लाख रुपए दीजिए, साफ करवाइए, मैं चलता हूँ। करेक्ट, हेलो। जितना मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में नंबर्स करेक्ट, होंगे कॉन्ट्रैक्ट कि पीरियड जितने इतना साल का रहेगा उतने साल फुटप्रिंट के कम करेंगे करेक्ट। 1 साल तक, क्योंकि वो आपका हेलो। एक अचीव हो गया आदमी, टारगेट। चाहे आप हो चाहे हम हो, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं टोटल लाइफ स्पैन में। इंडियन स्पैन जो होते हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग 1.5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। सूरज, यू हैव अ क्वेश्चन? बेसिकली सर, आप इसका ऑथराइजेशन किसी को नहीं देंगे, आई मीन आप अपने वे से लोगों को इसको यूज करने के लिए देंगे, लाइक एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ? नहीं, मैं ऑथराइजेशन दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वैसे आदमी चाहिए जो मेरे टेक्नोलॉजी को समझ सके। कोई ऐसा आदमी को नहीं देना चाहता हूँ जो इसका मिसयूज कर सके। क्योंकि लाइसेंस, क्योंकि पेटेंट की जब बात आती है, पेटेंट का आप ऑथराइजेशन मैं एक आदमी को, 2 आदमी को, 3 आदमी को कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे आदमी को नहीं करूँ जो इसको मिसयूज करके किसी और फैक्टर पे यूज कर सके। थैंक यू सर। सूरज, यू हैव लास्ट क्वेश्चन? हेलो सर। यस यस। सर आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना होगा 1 साल का किस चीज ऑपरेटिंग को कॉस्ट? लेके? देखो सूरज, इसका मतलब आप ये तो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है। जब तक पैंडेमिक सिचुएशन खत्म होगा उसके बाद ही इस चीज के पे फाइनेंशियल पे हम लोग बात कर सकते हैं। मतलब ठीक आपने है सर। बनाया नहीं है या अभी रिवील नहीं करना चाहते हैं? अभी रिवील नहीं कर सकते हैं सर, ओके क्योंकि ओके, हमारा नहीं ठीक है, फाइनेंस। वो तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल है अभी। एनीवे आपका आई थिंक मेन क्लाइंट गवर्नमेंट है या कोई बड़ा आई थिंक सर, इंडस्ट्रियलिस्ट? मैं आपको या एक लाइन इसमें ऐड करना चाहूंगा। प्लीज। आपने जेफ बेजोस का नाम सुना होगा, करेक्ट करेक्ट। एलन मस्क का नाम सुना है? हम्म। आई थिंक कुछ 6 महीने साल भर पहले आई थिंक देयर इज सम ट्वीट गोइंग ऑन कि एलन मस्क जो है कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी को फंड कर रही है $1 बिलियन। जेफ बेजोस ने भी वही टेक्नोलॉजी पे निकाला है। तो वेयर इज कार्बन टेक्नोलॉजी? आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, इन्होंने कमिटमेंट प्लेज लिया है कि वी वांट टू बिकम ए कार्बन नेगेटिव। आप नेगेटिव कैसे बन सकते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए। कार्बन न्यूट्रल हो सकते हैं, बट कार्बन नेगेटिव होने के लिए आपको मेरी टेक्नोलॉजी पे आना पड़ेगा। करेक्ट, तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है आपके? आपके, क्योंकि आप सोलर पावर प्लांट बना के आप अपना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेंगे, आप न्यूट्रल हो जाइएगा, बट जो ऑलरेडी आपने छोड़ चुका है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कैसे हटाइएगा? उसके लिए ये टेक्नोलॉजी आपको काम करेगी।
इसमें मैक्सिमम सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बिगर प्लेयर्स जो हैं इस पे काम आएंगे। श्योर श्योर। नहीं, अच्छा इंसाइट दिया आपने कि क्लाइंट कैन बी बोथ साइड्स। आई मीन गवर्नमेंट से शायद ज़्यादा ही टाइम लग जाए, प्राइवेट Correct. वाले जल्दी मान जाए शायद, Correct. जहाँ जहाँ ये इश्यूज है। ठीक है, वेरी गुड डिस्कशन टुडे। सो थैंक यू फैजल, थैंक यू एवरीवन। सर एक क्वेश्चन था स्टार्टअप से रिलेटेड वालों के लिए, लाइक गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट कैसे करते हैं? कोई इजी वे है कुछ? गवर्नमेंट से क्या? गवर्नमेंट के साथ अगर टाई अप करना हो तो, गवर्नमेंट के अच्छा, साथ अगर बातचीत करनी हो, कोई प्रोडक्ट हो तो कैसे कांटेक्ट करते हैं, या कौन डिपार्टमेंट का है, कैसे गवर्नमेंट के साथ अगर डील करना हो तो? गवर्नमेंट के साथ डील करना होगा, पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट किस डोमेन पे आ रहे हैं। आपका डोमेन हेल्थ केयर सेक्टर में है, एनवायरमेंटल सेक्टर्स में है, या वाटर सेक्टर में है, हेल्थ केयर सेक्टर्स में है, कौन से डिवीजन में आता है, उसके बेसली आपको उस बंदे से मिलना पड़ेगा। सर आप वाले का एग्जांपल दे दीजिए ना, आप मेरा पहला तो आता है, आप वाले का एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कि जैसे मेरा डिपार्टमेंट आता है, एक आता है पोल्यूशन डिपार्टमेंट, दूसरा आता है MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये दोनों डिपार्टमेंट में मेरा काम चलता है, बात चलता है, और इसी करते आप ये आपको उस टेक्नोलॉजी उस डोमेन के बंदे से उनके ऑफिस में जाके उनसे बात करना होगा, या उनके जो चेयरमैन उनके डायरेक्टर्स होंगे उनसे बात करना होगा। आपको अपना प्रपोजल देना होगा उनको कि सर मैंने ऐसा ऐसा बनाया है। अगर देयर इज नो कंपटीशन इन द मार्केट, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो आपको अगर गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो आपको पायलट प्रोजेक्ट का पैसा वो दे देंगे। गवर्नमेंट आपको बोलेंगे कि भैया आप प्रोजेक्ट लगाना चालू करो, और एक बार प्रोजेक्ट आपका सैंक्शन हो गया। सर एक लास्ट सवाल था, ठीक है, ये मैं समझ गया। और जैसे अभी मैंने गूगल किया हाउ टू एक्सट्रैक्ट CO2 फ्रॉम एयर, तो उसमें एक ऑप्शन आया डायरेक्ट वाला। तो मतलब ये मतलब कि ऐसा भी मतलब कुछ सिमिलर प्रोसेस तो है, मतलब जो एयर से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं CO2 को, तो अपने प्रोसेस में कितना डिफरेंस है, या मतलब इसमें क्या यूनिक है? आपने क्या पढ़ा है मुझे तो नहीं पता, आप CO2 कैसे करते सकते हैं। CO2 को प्रोसेस बहुत सारा हटाने का एटमॉस्फेयर से। तो मतलब अपने वाले में क्या यूनिक है? सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस है। ओशंस है, ओशंस क्या काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही एटमॉस्फेयर से हटा के खुद पे ले रही है, वो खुद एसिडिक हो जा रही है। प्लांट्स क्या करते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं अंदर में। नहीं सर, आप समझे नहीं, मतलब कि एक्सट्रैक्ट करके अपने पास रख सकते हैं, किसी डब्बे में स्टोर कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रोसेस अवेलेबल है गूगल पर भी। तो मतलब इन अपने इस प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? मुझे तो नहीं पता सर, आप मुझे लिंक भेज दो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको कंपैरिजन बता दूंगा। ओके। श्योर श्योर। एनीवे सारे चीज़ सब लोग नहीं बताएंगे ऐसे भी। चलिए, ओके, चलिए, थैंक यू everyone for coming. Thank you Faisal for थैंक यू। enlightening us with all the knowledge and your journey. So good night everyone, we'll meet again next Friday. Thank you, sir.